सुना तो आप सबने अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग, अगर नहीं सुना तो आज मैं सबको अच्छे से समझाता हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश मनचंदा। आई एम द co-founder and CMO at VUI Live, which is one of the fastest growing digital marketing agencies in India. In the 15th century, after the invention of printing press by Johannes Gutenberg, mass production शुरू हुआ flyers और brochures का by different businesses so that वो broader level की marketing कर पाएं. And even 15 years back, businesses more or less same type of marketing कर रहे थे, या तो newspaper ads दे रहे हैं, या फिर TV ads दे रहे हैं, या फिर flyers और brochures ही बन रहे थे. But you see, this kind of marketing has a major gap. You cannot calculate the ROI of this marketing effort. I mean, अगर आप अलग-अलग newspaper में ads देते हैं, कौन से न्यूज़पेपर से आपको बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड कौन से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट. और अगर मैं कहूँ आपने मल्टीपल एड्स दी हैं सेम न्यूज़पेपर में, तो कौन सी एड आपके लिए बेटर परफॉर्म कर रही है एंड कौन सी परफॉर्म नहीं कर रही है, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट calculate with this kind of marketing. But as Facebook and Google started becoming more popular, they solved one of the biggest problem, which is calculating the ROI of different ads and different placements. Right now, if you are running ads on Facebook and Google, you can keep a track of each and every penny that you have spent, and you can get an understanding of which platform is performing better for you and which one is not. As of now, ऐसा कोई startup नहीं है जो Facebook and Google ads को use ना करता हो, जिसने performance marketing ना सुना हो. So if you can deliver results, there is no bar. I'm telling you, there is no bar in how much money you can make. So I hope you are ready to understand the amazing skill. So before we move forward, let's understand some of the most important terms in performance marketing. CAC, which is customer acquisition cost to acquire one customer. Second is CPC, which is cost per click. Number 3 is CTR, which is click-through rate, and basically it's a percentage of people who click on your ad after seeing it. The next one is cost per acquisition. Number 3 is return on investment, which is basically net profit divided by the cost of investment. Then you talk about conversion rate, which is a percentage of visitors who take a desired action. It could be purchases, it could be product added to the cart, it could be lead form filled. So as per your desired output that you have got, उसका रेशो जब हम देखते हैं, दैट इज कन्वर्जन रेट. द नेक्स्ट वन इज रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग, विच इज टारगेटिंग एड्स टू पीपल हु हैव प्रीवियसली इंटरैक्टेड विद योर ब्रांड. So customer acquisition cost is one of the most important parameter in performance marketing for any startup. So अभी चेक करते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करा जा सकता है. So it is basically a ratio of total marketing cost, which is a combination of your advertising money, agency or employee salary plus the subscription cost, all divided by the number of clients you have acquired. So now let's assume if your advertising money is equal to X, agency or the salary of the employee is equal to Y, and the subscription or software cost is equal to Z, and the number of customers that you have acquired is C. So cost of acquisition is equal to sum of X, Y, Z, and it all needs to be divided by C. अब अगर लॉजिकली बात करें, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा प्रोडक्ट प्राइस से कम होनी चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 100, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा 100 रुपये से कम होनी चाहिए, और जितना वो 100 रुपीज़ से कम होगी उतना आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते जाएंगे. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस. There are majorly two type of businesses. One जहाँ पे recurring sales होती है, दूसरा जहाँ पे one time sales होती है. Let's talk about recurring sales वाला business. So this is those kind of businesses जहाँ पे एक बारी customer आपने acquire करा, and अगर आपने उनको अच्छी services provide करी तो आपसे वो दोबारा आके purchase करेंगे. इवन दो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे करी थी, अब दूसरी बार जब वो आपसे परचेज करेंगे तब आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होगा. सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रोडक्ट प्राइस से ज़्यादा है, तब भी देयर इज़ नो इशू, क्योंकि वो फ्यूचर ऑर्डर्स में आप उतना ही रेवेन्यू उनसे बना सकते हैं. बट फॉर अ वन टाइम सेल्स बिजनेस आप तभी पैसा बना पाएंगे जब आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रोडक्ट प्राइस से कम है, क्योंकि जो फर्स्ट सेल हुई है उसी में आपको पैसा बनाना है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट. एक वन टाइम सेल्स है, दूसरा रेकरिंग सेल्स बिजनेस है. दोनों में सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस दोनों का 25 रुपीज़ है, नेट प्रॉफिट दोनों के केस में 75 होता है. बट वन टाइम सेल्स बिजनेस में लाइफ टाइम परचेज वो
वन ही होगा, क्योंकि एक बार ही अगर किसी ने परचेज करा वो दोबारा आपसे परचेज नहीं करेगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दी रेकरिंग बिजनेस, वहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि लाइफ टाइम परचेज है 7.9 आता है। लाइफ टाइम वैल्यू अगर वन टाइम में आप देखोगे वो 75 निकल के आएगा, विच इज़ बेसिकली अ मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्सन हैज़ परचेज्ड एंड द नेट प्रॉफिट दैट यू आर मेकिंग। ऑन दी अदर साइड आप रेकरिंग सेल्स बिजनेस में देखोगे तो 7.9 को जब आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका ओवरऑल लाइफ टाइम वैल्यू जो निकल के आती है वो 592.5 आती है। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आपका वन टाइम सेल्स बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैन नेवर बी मोर देन 75 रुपीज़ फॉर यू टू मेक इवन अ सिंगल पेनी। इनफैक्ट 75 से आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना कम होगा, आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट उसमें बना सकते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर आप रेकरिंग सेल्स बिजनेस की बात करते हैं, वहाँ पे अगर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 75 से कितना भी ऊपर जाए, तब भी यू विल बी एबल टू मेक मनी, क्योंकि एक बार ही किसी ने परचेज करा, मे बी यू हैव नॉट मेड एनी मनी, बट ऑन दी अदर सेल यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। सो दैट्स द डिफरेंस। सो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, बट फ्रॉम हियर ऑन आई थिंक वी नीड टू टेक अ डीपर डाइव इनटू द काइंड ऑफ ऑडियंसेस एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो प्राइमरली देयर आर टू काइंड ऑफ ऑडियंसेस। नंबर 1 कोल्ड ऑडियंस, नंबर 2 हॉट ऑडियंस। नाउ लॉजिकली कोल्ड ऑडियंस वुड ऑलवेज बी कॉस्टलियर, क्योंकि ये आपके ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सो क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो इंटरेस्ट जनरेशन के लिए आपको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा एंड आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा हायर साइड पे रहेगी। ऑन दी अदर साइड अगर हम हॉट ऑडियंस की बात करते हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। सो ये इनकी पॉसिबिलिटी आपके प्रोडक्ट को बाय करने की हायर साइड पे रहती है, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा कम रहेगी हॉट ऑडियंस की इन कंपैरिजन टू कोल्ड ऑडियंस। यू मस्ट हैव सीन अंकुर वारिकू's वीडियो, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि दे हैव स्पेंट अराउंड 50-60 lakhs ऑन अ मंथली बेसिस एंड दे हैव मेड जस्ट ट्वाइस ऑफ द एड स्पेंड दैट दे हैव डन, विच मीन्स अगर वो 50-60 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं, वो सिर्फ ट्वाइस का ROS विच इज़ 2 का ROS लेके आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है फॉर एवरी रुपी स्पेंट दे आर जस्ट मेकिंग ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ ऑन दैट, which is amazing cost of acquisition. Now how is it possible? So यहाँ पे अंकुर वारिकू अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं एंड जो भी ऑडियंस उनके वीडियोस देख रहे हैं उनको वो रीटारगेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एड्स, एंड सिंस दे आर हॉट ऑडियंस उनकी पॉसिबिलिटी उनके कोर्सेज को बाय करने की हायर साइड पे रहती है, इसलिए दे आर एबल टू गेट दोज अमेजिंग रिजल्ट्स। अब ये समझने की कोशिश करते हैं आप फेसबुक एंड गूगल पे कोल्ड एंड हॉट ऑडियंस कैसे ढूंढ सकते हैं। सो फेसबुक कैंपेन्स में आप कोल्ड ऑडियंस अगर ढूंढेंगे तो आप लुक अलाइक ऑडियंस को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट एज, जेंडर, लोकेशंस एंड डिफरेंट इंटरेस्ट एरियाज के बेसिस पे आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। जहाँ पे आपको हॉट ऑडियंस ढूंढनी है वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है, या फिर आपसे कुछ चीज़ पास्ट में परचेज करी है, या फिर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ एंगेज करा है, बी इट इंस्टाग्राम और फेसबुक। गूगल एडवर्ड्स के लिए अगर आपको कोल्ड ऑडियंस ढूंढनी है, आपका मेन जो है आप शॉपिंग कैंपेन्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आप नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स में आपके जेनरिक कीवर्ड्स आते हैं विच आर रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड आपके वहाँ पे कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स आते हैं जिसमें आपके कॉम्पिटिटर के ब्रांड कीवर्ड्स यूटिलाइज होते हैं। हॉट ऑडियंसेस में आप फोकस कर सकते हैं ब्रांड कीवर्ड सर्च कैंपेन्स पे, जहाँ पे बिजनेसेस उन कीवर्ड्स पे बिड करते हैं जिसमें ब्रांड नेम ऑलरेडी स्टफ्ड है, एंड उसके अलावा आप रीटारगेट कर सकते हैं उन ऑडियंसेस को जिन्होंने आपके एड्स के साथ ऑलरेडी इंटरैक्ट किया है इन द पास्ट। अब ये समझते हैं आप कोल्ड ऑडियंस को हॉट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। रीटारगेटिंग इज ऑल अबाउट नर्चरिंग योर प्रोस्पेक्ट्स बाय शोइंग देम योर एड्स अगेन एंड अगेन। द बेस्ट वे टू कन्वर्ट द कोल्ड ऑडियंस इनटू हॉट ऑडियंस इज बाय डूइंग रीटारगेटिंग। हमने अंकुर वारिकू की भी बात करी थी इस वीडियो में, एंड वी ऑल नो हम सब उनकी एड्स देख देख के परेशान हो चुके हैं, बट अल्टीमेटली रिपीटेड एड्स की वजह से उनकी कोल्ड ऑडियंस वार्म में कन्वर्ट हुई, वार्म हॉट में कन्वर्ट हुई। इट डजंट रियली मैटर इफ दे हैव सीन दोज एड्स ऑन यूट्यूब और ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज बाय सीइंग दोज एड्स रिपीटेडली, all those people who have seen those ads became his students. Now I really want to teach you a lot about this topic, but ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. So if you want me to create a series on this topic, just put your comments below.